present here. Our today's training topic is gamification of learning. So in this topic, actually gamification of learning is a process where we teach students. The teaching process is of through games. Means whatever interactive way we can use, we go through with that and we motivate children for education. So in this topic today our resource person is very efficient, very intelligent teacher, and that is Raj Kishore sir, who is going to take us through with this topic and elaborate about gamification of learning. So without wasting much time, let's welcome Raj Kishore sir. So please give a huge round of applause to him. Thank you, ma'am, for such type of introduction. So, myself, Rajkishore Rana, and our topic is gamification in learning. So, today we all know about how to use gamification in learning process. Because in learning, gamification plays a most important role in learning process. Because all the students like gamification, like games. We all know about the students that whenever we go to the class, all the students tell, sir, I go to the PhD class, go to the game class. All the students tell that go for game. So how to use that game in giving that game in learning, how to use that effort in learning process. Okay, so first of all, of gamification in learning, first our mission is compulsory. सबसे पहले तो मिशन होनी चाहिए हमारी कि कैसे गेमिफाई करते हैं. So, many educators have been interested in motivating their students and helping them to engage in their learning. So, gamification basically how to engage the students, how to engage the students in learning process through games. So, there are many methods to engage the students in learning process. So, उसमें gamification is one of them. Motivation, various type of motivation in the classes, but gamification is one of them to motivate the students in and engage the students in learning process. So our mission is Our mission of today's session is that how to use to demonstrate your understanding of the concept described in each chapter by applying skill necessary to gamify instruction in your classroom. Various chapters are हर एक चैप्टर में आप ये कर सकते हैं कि हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ गेम एलिमेंट्स को डाल करके आप स्टूडेंट्स को उस चैप्टर में एंगेज कर सकते हैं. सो सबसे पहले तो कुछ उसी से गेम से ही रिलेटेड कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे आप वी यूज ऑल दिस इन द हाउसेस आल्सो, होम आल्सो, टू योर चिल्ड्रन दैट फॉर एग्जांपल टू डॉटर्स या two brother and sisters. Here this is a dashboard of game. उसको ये बता सकते हैं इसको तैयार करके, क्योंकि घर में भी बच्चे पढ़ने में बहुत दिक्कत करते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते. तो कैसे हम उसको अपनी तरफ गेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इंगेज कर सकते हैं लर्निंग. तो उसके लिए हमने क्या किया, हम ये कर सकते हैं घर में या फिर स्कूल में भी. तो घर में ये कर सकते हैं बेसिकली कि देयर आर सम नंबर्स इन द सर्कल एंड दैट नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ क्वेश्चंस of mathematics and tell the children
that complete the number of questions, do the number of questions in their copies, in their notebook, and each when the students complete each level, they got some rewards. उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिले, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा या फिर गेम ही होता है तो गेम खेलने में इंटरेस्टिंग तभी होता है जब उस गेम में कुछ रिवॉर्ड्स मिले। रिवॉर्ड्स इट मींस कि in game rewards virtual currency like virtual currency and some lottery, that is 8 is represent the number of questions of mathematics. When they completed 8 questions they go through the level 2 and level 2 is lottery, means if they got some rewards to the students that engage, that take interest in the learning and go through the next level of solving 7 problems. And this first complete करेगा 8 क्वेश्चन को and then वो 7 क्वेश्चन, इससे ये उसको मन में ये होगा कि हाँ 8 क्वेश्चन है, उसके बाद उसको 7 क्वेश्चन करना, तो वो हेक्टिक नहीं महसूस करेगा कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर सकते हैं। तो मैंने वही किया कि 7 क्वेश्चन एंड देन 7 क्वेश्चन एंड गो थ्रू द लेवल 3 एंड वेयर लेवल 3 दैट इज अ लॉटरी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे आप कह सकते हैं कि ये पूरे गेम का अगर आप कंप्लीट करेंगे तो यू हैव गॉट अ प्रिंसेस डॉल टू द चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे से बच्चे जो है वो डॉल को बहुत पसंद करते हैं। तो पेरेंट्स ये कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट्स को, बच्चे को कह सकते हैं कि दैट कंप्लीटेड द लेवल ऑफ द गेम, दैट गेम एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द गेम she or he got a princess doll of महंगे, जो महंगे होंगे। अब छोटा सा 10 रुपए का अगर हम देंगे तो वो दैट स्टूडेंट्स नॉट टेक द इंटरेस्ट ऑन दैट। सो एंड बीच बीच में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बीच बीच में हमें कुछ रिवॉर्ड्स उनसे देने हैं। ऐसा नहीं कि आफ्टर कंप्लीटिंग द गेम दे गॉट अ प्रिंसेस डॉल, देन आप बीच में आप क्या कर सकते हैं कि बीच में, दैट्स व्हाई बीच में मैंने लेवल 3 लेवल 4 दैट इज द लॉटरी कॉन्सेप्ट, दैट इज वर्चुअल करेंसी, या फिर आप छोटी मोटी चॉकलेट्स आप बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हो। तो दैट इज द लेवल एंड देन 6 5 4 3 एंड दैट इज द फाइनल पोजीशन एंड व्हेन दे कंप्लीटेड द फाइनल राउंड ऑफ द गेम सी और ही गॉट अ प्रिंसेस डॉल। तो दैट इज द मॉडिफिकेशन, दैट इज द फ्रेमवर्क ऑफ द गेमिफिकेशन कि कैसे बच्चे, तब जाकर के बच्चे ये चीज देख करके बच्चे मोटिवेट होंगे और इंगेज होंगे पढ़ाई में कि हाँ हमें दैट कंप्लीटिंग द होल गेम एंड रीचिंग द फाइनल लेवल एंड दे गॉट अ डॉल ऑफ हायर वैल्यू। सो दिस इज द, दैट्स व्हाई माय नेम इज सेविंग द प्रिंसेस। So all the rules जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पर है कि on the game board there is a part made up of circle containing numbers. These numbers represent the number of math question from the math book or any other book from my side also that the players will need to answer before moving the next circle. पहले वो पहले सर्कल को कंप्लीट करें then go to the other circle. Finally when the players arrive to the castle space they have completed the game requirement and you have to buy the princess doll for the daughters for the son. So this is the reward for the students, that students take the interest on the learning, that virtual currency and many games in the mobile also get a virtual currency like Candy Crush. जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे, इवन जो बड़े लोग हैं वो गेम खेलना तभी पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि अगले लेवल में हमारा कुछ ये लेवल करने से हमें जेम्स मिल रहे हैं या फिर कुछ मिल रहे हैं, तब जाकर के वो इंटरेस्ट पैदा होगा। तो वही चीज अब मैथ्स, वही चीज हम लर्निंग प्रोसेस में भी ला सकते हैं। सो लॉटरी 10 स्टोर्स, अब उसमें कुछ ऐसे भी रहते हैं गेम जिसमें आप कह सकते हो शुड बी स्टॉक्ड विद स्नैक्स, स्वीट्स, स्टिकर्स एंड द स्मॉल टॉय फॉर द प्लेयर्स टू बाय। So and their virtual money throughout the games. पूरे गेम्स में हर कुछ लेवल के बाद कुछ वर्चुअल
मनी होनी चाहिए। वर्चुअल मनी मींस ऐसा नहीं कि रियलिटी में आपको मनी देनी है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ वर्चुअल मनी भी उसमें रहनी चाहिए, तो इंटरेस्ट करेगा लर्निंग प्रोसेस। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज रिस्पॉन्सेस। मीन्स कि आपने तो गेमिफाई कर दिया, बट क्या बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द गेमिफिकेशन। दैट इज रिस्पॉन्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट द प्लेयर्स एक्सपेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस ऑफ दैट गेम और नॉट। बच्चे उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं। अगर यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस हमें मिले। Not all the students are equal. All the students are not equal. That's why if the some students not take the interest on that, so उसको ढूंढिए कि वो उसको क्या चाहिए गेम। So that's why motivated to solve the practice math question from the textbook। कोई जरूरी नहीं मैथ क्वेश्चन, ये आप साइंस के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को, या फिर वर्ड जो भी इंग्लिश में है वर्ड मीनिंग आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स यू हैव टू लर्न थ्रू आउट द डे, एक दिन में या 2 दिन में जो भी हो। हैव इंटरेस्ट इन अदर प्लेयर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। अब आपने गेम को गेमिफाई कर दिया, अब अगर यदि बच्चे उसको कर रहे हैं तो आप देखिए कि उसमें क्या अचीवमेंट या कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। दैट इंप्रूवमेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि अगर भी इंप्रूवमेंट हो रहा है तब आप उस गेम को फिर से हम नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एंड गिव द रिजल्ट टू द हायर वैल्यू। ये मोटिवेट करेगा बच्चों को कि हायर वैल्यू का, जैसे हम नहीं है, हमको पढ़ने के लिए बोला जाए तो कुछ हायर वैल्यू का जब गिफ्ट मिलता है तो हमें कुछ करने का मन करता है। जैसे 10th क्लास के बच्चों में ये सुनते होंगे कि पेरेंट्स उसके बोलते हैं कि हाँ 10th क्लास पास कर जाओगे, देन यू हैव टू गॉट अ बेटर मार्क्स ऑन द 10th क्लास, यू हैव गॉट अ बैक। सो दे नॉट टेक इंटरेस्ट इफ दे देयर पेरेंट्स टॉक टू द स्टूडेंट्स व्हेन दे, वो जब वो चाहेंगे कि कुछ सिंगल मतलब लो प्राइसेस की कुछ गिफ्टेड दे तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हायर वैल्यू का जो रिवॉर्ड्स है वो होना जरूरी है। Ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster unadapted mind. Where a monster. So, जैसे मैंने बोला कि रिवॉर्ड्स होना जरूरी है, तो कैसे रिवॉर्ड्स होगा उसको हम थोड़ा सा समझते हैं वीडियो के थ्रू, एंड देन Ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own monster unadapted mind. Where monsters teach you math. Oh my, that monster looks incredible. Alrighty, these pets aren't going to hatch themselves. Let's go. Ooh, I can't wait to see what awesome pet is inside this egg. Let's do it. Do you know the answer? Click here to answer and hatch your own pet on Adapted Mind. Come on, you've got this. Correct. What? We hatched the
on his active mind. Like this. Let's pretend race begin. Come join us. So, आपने इस वीडियो के थ्रू हमने समझा कि एवरी करेक्ट आंसर दे गॉट अस सम रिवॉर्ड। तो यहां से बच्चे को आप गेम से लर्निंग पर ले जा सकते हैं कि कुछ हर स्टेप में आप कुछ उसको रिवॉर्ड देंगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ गेम। सो दिस इज द gamification. So first of all you have to know about the game. What is game? So game is, before we know about the gamification, you must have to know about the game. Game is a rule based play with determined goal. हर गेम का एक गोल होता है, बिना गोल के गेम नहीं हो सकता और उस गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए। हर गेम में कुछ ना कुछ रूल्स होता है ताकि बच्चे को वो क्या कर सके, उस रूल के थ्रू ही उस गेम को खेला जा सके। तो गेम इज अ रूल बेस्ड प्ले विथ डिटरमाइंड गोल्स, अ सिस्टम इन व्हिच प्लेयर्स एंगेज इन एन आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट डिफाइंड बाय द रूल्स दैट रिजल्ट इन क्वांटिफिएबल आउटकम्स। The second point tells that कि गेमिफिकेशन में एक तो एंगेजमेंट होना चाहिए एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। जब तक आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा बच्चों के बीच, बच्चों में ये होता है कि वो आगे कैसे जा रहा है, वो नेक्स्ट लेवल पर कैसे जा रहा है। जब वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा तो पीछे वाले बच्चे जो कम लेवल पर है वो उससे क्या होंगे कि नहीं हम भी उस लेवल पर जाएंगे। तो दैट इज द आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट, नॉट अ रियल कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिफिशियल कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी and that gives the quantifiable outcomes, जिससे मुझे क्वांटिटी बेस्ड लर्निंग मिलेगा, वो क्वालिटी बेस्ड लर्निंग मिलेगा विथ क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट गेम इज अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल चॉइसेस मेड बाय द प्लेयर्स इन परस्यूट ऑफ क्लियर एंड कंप्लीटिंग गोल्स। दैट्स व्हाई मीनिंगफुल चॉइसेस होने चाहिए बच्चों में, इंटरेस्टिंग एंगेजमेंट भी होने चाहिए बच्चों में, बिना एंगेज के वो नहीं आगे कर सकते। आगे सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गेम्स जो मैंने आपको बताया, have goals that must be reached। ऐसा नहीं है कि गेम चलता ही चला जा रहा है, एक फाइनल पोजीशन भी वहां पर होनी चाहिए ताकि बच्चों में ये इंटरेस्ट पैदा हो कि नहीं उस पोजीशन पर जाकर के हमें वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सो दैट have goals that must be reached, include constraints and rules and constraints is necessary in the game। ठीक, क्योंकि उसी रूल्स एंड उसी कंस्ट्रेंट्स के अनुसार ही उस गेम को खेलना है। ऐसा नहीं है कि विदाउट रूल कुछ भी आप कर लें, या स्टूडेंट्स अगर वो गेम आप जो भी तैयार किए हैं उसमें कुछ रूल्स एंड कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाने जरूरी है। नेक्स्ट इज सिचुएटेड इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, मींस कि उस गेम का कुछ कंटेक्स्ट होना चाहिए कि इस गेम से आप बच्चों को क्या लर्निंग देना चाहते हैं। नेक्स्ट हैव कॉन्फ्लिक्ट, have win and lose। Win and lose is the feeling of the student that student like moves। कि वो जैसे क्लासरूम में आप क्विज खिलाते हैं तो आप ग्रुप बना देते हैं, तो जो ग्रुप उसमें जीतता है तो that feel very good। So win and lose is compulsory in the game। Not ऐसा नहीं है कि गेम खिला दिए हाँ बस हो गया, तो उसमें विन और लूज कौन सा प्लेयर या फिर कौन सा टीम जीता हारा ये जरूरी है। तो वो बच्चे इंटरेस्ट में क्रिएट देयर ओन इंटरनल वैल्यूज। इसमें क्या है, उसमें बच्चे भी अपने आप को क्या कर सकते हैं कि अपने अंदर क्या पोटेंशियल है वो जान सकते हैं। इंटरनल वैल्यूज उसके कितने हैं कि हाँ हमने इस लेवल में किया तो इसका मतलब हुआ कि हमारे अंदर आवर इनर पोटेंशियल इज गुड। So engage players and all are closed form system। closed form system that मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गेम क्लोज होना चाहिए, ऐसा नहीं गेम चलता जा रहा है। ठीक, so this is the board जिसमें आप various games kits are available in the market or through offline process or also in online। so offline में various games kits for the students, for the children also, that this is the ये अलग अलग रहेगा और इसमें बच्चों को आप कह सकते हैं कि इसमें आप जब सारा आप सेट कर देंगे तो उसके बाद आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे।
तो उसमें बच्चे देखेंगे कि इसमें कौन सा सेट हो रहा है, तो फर्स्ट इज द स्क्वायर, सो वो जानेंगे कि दैट इज द व्हाट इज स्क्वायर, वेयर द ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल्स। देन वो क्योंकि बाकी सारे में जितने भी रेक्टेंगल्स उसमें पुट नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए स्पेस है नहीं, तो वो इससे सीख पाएंगे कि व्हाट इज स्क्वायर, द वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर अबाउट द इन द मैथ्स। सो स्क्वायर, triangle, semicircle, hexagon, star, so these all are the shapes of in the geometry, and through this आप बच्चे को अच्छे से समझा सकते हैं कि उसमें कौन से शेप को क्या करना है। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप ये भी देख रहे हैं कि और पूरा जो बोर्ड है दिस इज द रेक्टेंगल शेप, है ना, where the rectangle has length and breadth, आप उस बच्चे को बता सकते हैं कि देखो यही हमारा रेक्टेंगल है। One more कि add to make pillar, the puzzle like questions are to the for the students that 3, 6, 9 and till the inner entries are there in the boxes and final are there in the boxes where the strawberry are, you have to look at strawberry for the फाइनल ऑन, कि इसमें कौन से किधर से हम जाएंगे कि हम फाइनल वहां पे स्ट्रॉबेरी का जो रिवॉर्ड हम ले सकें। तो सम हमको 11 लाना है, तो दैट 3 + 2 + 2 + 2 इज 11, तो वो उस रास्ते से आ करके वो निकले। आप बच्चों में भी देखे होंगे क्लास में भी वेरियस डॉट्स आर देयर एंड देन ज्वाइन द डॉट्स, एंड जो जीतता है वो उसको फील अच्छा होता है, फील मींस कि वो हम जीत गए, तुमसे तेज है, तो ये चीज होना चाहिए। एंड हियर क्या हम वहां पे रखें 18 आ जाए दैट इज 8, एंड क्या रखें कि 20 आ जाए दैट इज 18। और ऐसा नहीं कि सिर्फ गेमिफाई करना ही जरूरी है, उसके लिए रिवॉर्ड्स रखना आपको जरूरी है। सो नाउ कम टू द मेन टॉपिक दैट इज गेमिफिकेशन। गेम तो हमने खेलना सीख लिया, अब दैट उस गेम को जो कॉन्सेप्ट है उसको हम गेमिफिकेशन कैसे। So gamification is to change something that is not a game through a game or its element. Means कि games के element हम gamification learning में कैसे अप्लाई करें, क्योंकि जितने भी games में जितने भी हमने काम किया वो सारे का सारा आप gamification में नहीं डाल सकते। उसमें जो लर्निंग वाला चीज है आप उसमें जब डाल देते हैं, लर्निंग प्रोसेस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, that condition is gamification. That is, gamification is to change something that is not a game through a game or its element. That is, gamification means engage children in tasks, promote collaboration, in improve motivation. ताकि वो मोटिवेट हो कि नहीं हमको सीखना है, वो खेल में ही सीख जाएगा कि हाँ हमें कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रेक्टेंगल है, लाइक दिस। So definition of gamification regarding an education. Gamification is a set of activities and processes to solve problem related to learning. गेम से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट which type of shape in the mathematics, वो गेम से हम तुरंत समझ जाएंगे हाँ दिस इज द स्क्वायर शेप, दिस इज द रेक्टेंगल शेप। सो लर्निंग एंड एजुकेशन बाय यूजिंग और अप्लाइंग द गेम मैकेनिक्स का यूज करके हम सीखेंगे। Due to fun and playful nature of gamification can be good for the solution of problem related to the subject. Because students have fun, वो fun करेंगे स्टूडेंट, तो वो मस्ती करेंगे कि हमें एक्चुअल में उनको लगेगा कि हम तो गेम खिला रहे हैं, बट उसी गेम में कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे लर्निंग प्रोसेस में, उनको पता भी नहीं चलेगा और खेल में वो पढ़ लेंगे। दैट इज द प्लेफुल नेचर ऑफ गेमिफिकेशन। Let's be honest. So have you what is gamification through this video and then आगे समझाता हूँ। Let's be honest. Kids despise learning, but they enjoy playing games and would not mind sacrificing their sleep just to earn points, defeat the boss, or unlocking the new levels. How great it would be if we can make learning fun just like games. Anyway, you already did that. Gamification refers to involving game elements like points, badges, and achievements into a non-gaming activity to motivate users' participation.
Each time you receive a reward, your brain releases dopamine that makes you feel good, chase after more reward, and motivates you to do more. This is how gamification in education works. It makes the learning fun, more engaging, and motivates the students to spend more time. Different game mechanics and game dynamics are used to gamify learning. Here is how you can use them. Points and XPs. Use points and XPs to develop a reward-based grading system where students earn points for every effort made. This cumulative way of marking proves to be more efficient as earning points in each evaluation feels more rewarding. Levels and challenges. Use levels to define the learner's journey. Start with the basics of the subjects with simple tasks and gradually increase the level of difficulty as the student progresses in the module. Leaderboards. Everyone wants to see their name on the top, and that's the reason all addictive game has a leaderboard. Utilize leaderboard in gamifying learning, and students will spend more time just to see their name on the top. Gamification sounds really cool, but does it really improve the learning process? Well, check these numbers. Beat the GMAT or GMAT Prep community saw 370% higher user engagement using the gamified system. Deloitte Leadership Academy saw 46% higher user retention using game mechanics on their platform. Even many e-learning platforms have achieved massive success using gamification, such as Duolingo, a gamified language learning platform, has over 300 million users. Byju's, a leading edtech startup with valuation crossing 5 billion, uses gamification. Musician, a gamified music learning app, has over 10 million downloads and 250,000 positive reviews on Play Store. Even we have developed a gamified book reading platform for our client, Gateway. It aims to encourage reading habit among children and has thousands of books across different categories to browse from. We have implemented levels, challenges, points, badges, achievements, quirky characters, and many more game elements that makes reading fun and engaging activity. No doubt, gamification is the future, and so are the gamified learning platforms. And if you are a startup or enterprise looking to develop one, we can help. Tech. So here, through this video, आपने ये जाना कि गेमिफिकेशन से एक्चुअली में बच्चों में क्या है। गेमिफिकेशन से वो उसमें अंदर क्यूरियोसिटी आती है पढ़ने की, बिकॉज देयर बॉडी सीक्रेट डोपामिन हार्मोन, दैट डोपामिन हार्मोन कॉजेस हैप्पीनेस। सो इसकी वजह से तो इसमें वेरियस एप्स आर अवेलेबल इन द प्ले स्टोर, दैट Duolingo is for the spelling, and इससे आप उसको इंग्लिश सिखा सकते हैं, इंग्लिश बच्चों में वर्ड पावर बढ़ेगा। So this type of apps helps the student to learn through gamification. So gamification is the bringing of game elements into non-gaming environment to capture the motivational factor found in games and engage the students into learning process. So through the game से जो एलिमेंट जो नन आप कह सकते हो कि जो गेम एलिमेंट्स से हमको जो गेम में लर्निंग में हमको डालना है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं ताकि बच्चों में क्या है वो मोटिवेशन है, ताकि वो बच्चे एंगेज रहे पढ़ने। ठीक है। So theory of gamification के theories हैं। So first theories is motivation theories. First, motivate the student. And there are two types of motivation out there: intrinsic and extrinsic. सबसे पहले and the most important motivation is intrinsic motivation. Extrinsic motivation, that you motivate the students to learn the subject through gamification. But once you motivate the students to learn the subject, any subject through gamification, after that स्टूडेंट्स के अंदर से वो खुद से आना चाहिए कि नहीं अब हमें पढ़ना है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द इनर मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स आप कह सकते हो इंट्रिंसिक, कॉज्ड बाय इंडिविजुअल्स शोन प्लेजर, क्यूरियोसिटी एंड पनिशमेंट। एंड गेमिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पनिशमेंट भी होना चाहिए। एंड सेल्फ पनिशमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सेल्फ, अगर भी बच्चे सेल्फ पनिश करने के लिए सीख जाए कि हाँ मैंने आज ये काम नहीं किया, ये वर्क नहीं किया, तो कल मैं अब इससे ज्यादा वर्क करूंगा, मतलब सेल्फ पनिशमेंट हो गया। ताकि बच्चे, अगर ये कब आएगा स्टूडेंट्स के मन में, जब वो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हो जाएंगे, मींस कि अंदर से खुद से वो मोटिवेट हो जाए। बट एक्सट्रिंसिक में आप कितना भी बोल लो, कितना भी कर लो, तो वो उतना वर्क नहीं करता दैट इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो। So intrinsic influenced by the environment and external factors such as rewards and pleasure. External factors in the game, that is rewards, virtual currencies. These are the external. जिससे वो बाहर से उसको मिला तब जाकर के वो गेम खेलना शुरू किया, वरना वो गेम ही। But once he or she get motivated through intrinsic, they caused by the individual, को खुद से अंदर से खुश होगा और वो खुद से करना शुरू करेगा। And next theory is self determination theory. Once the students get motivated by itself, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन मींस कि वो अपने आप से उस गेम को या फिर जो भी आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर में वो खुद से वो गेम की तरह ही खेलने लगे। जैसे कि एग्जांपल है कि जैसे हम गेम को गेमिफाई कर सकते हैं लर्निंग को, कि वन स्टूडेंट्स वो क्या कर लिया कि वो एक दिन का एम बना लिया कि मुझे 1 मंथ में नंबर ऑफ रिफिल्स को खत्म करना, और वो ऑनेस्टली होना चाहिए। वो क्या करेगा, वो एक बच्चा है कि वो जो है वो अपना पेन ना किसी से शेयर करता है, ना किसी को देगा, ना किसी से लेगा। वो जब भी लिखेगा तो खुद के पेन से लिखे। तो अब वो क्या करेगा कि उसके अंदर अब वो हो गया कि उसे नंबर, ऐसे भी जैसे ही लोग में भी जब रिफिल खत्म होता है तो अलग से फीलिंग आता है, आप सोच रहे हो अलग से फील वो मैंने आई कंप्लीटेड द रिफिल एंड ऑल। तो बच्चों में भी जो वो आप मोटिवेशन डाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रिफिल्स को खत्म करेंगे, 1 महीने में देख लेंगे कि कितने रिफिल्स खत्म होंगे, ठीक है। तो हर दिन नसीहत, लेकिन हाँ ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि खुश करके खत्म किए जो भी। तो आप उससे क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस, मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस आर देयर फॉर द स्टूडेंट, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर द स्टूडेंट फॉर वर्ड मीनिंग और द राइटिंग प्रैक्टिस आल्सो। तो दैट इज द की एलिमेंट, दैट इज द थ्योरी ऑफ द गेमिफिकेशन। अचीवमेंट बाय गोल थ्योरी, हां वंस वी कंप्लीटेड द नंबर ऑफ रिफिल्स, देख लेंगे कि कितने रिफिल्स खत्म किया है, देन आप वहां पे गोल्स में पहुंच जाएंगे, हाँ इतने रिफिल्स हमने खत्म किए। तो इससे क्या होगा कि क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी कि नंबर ऑफ रिफिल्स हमें खत्म करने, दैट गेमिफाई द लर्निंग। अचीवमेंट एंड गोल्स थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सिचुएटेड लर्निंग थ्योरी, फीडबैक थ्योरी कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट कि once you play the game in the classroom, take the feedback from the students, and that feedback may be positive, may be negative. If the feedback is positive, means ऐसा नहीं है कि बस हो गया, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत। How to improve that game more and more interesting. And if you got a negative feedback, then where the game is negative, कहाँ पर वो चूक रह गया, किस क्या चीज बच्चों को पसंद नहीं आया, उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक। So feedback theory is necessary, feedback theory that is positive or negative. So gamification framework, gamification को आप कैसे बनाएंगे, हर चैप्टर में कैसे आप गेमिफाई करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज मैकेनिक्स, फर्स्ट स्टेप इज मैकेनिक्स इज कि कौन से चैप्टर का कंपोनेंट, सबसे पहले तो कंपोनेंट होना जरूरी है कि फ्रॉम विच सब्जेक्ट या विच चैप्टर, दैट इज मैथ्स, साइंस, विच चैप्टर यू हैव टू मेक अ गेम फॉर द स्टूडेंट्स इन अ क्लास। सो कंपोनेंट्स मींस पॉइंट्स होने चाहिए, बजट एंड वर्चुअल गुड्स होने चाहिए। क्लास में आप टॉफीज का रिवॉर्ड्स रख सकते हैं, दैट इज द रिवॉर्ड फॉर द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंट्रोल, मींस कि मैकेनिक्स में फर्स्ट है कंट्रोल, कि अगर अब गेमिफाई में होता है ये क्लास में कि बच्चे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो वो कंट्रोल आएगा आपके कंडीशन से कि आप इस कंडीशन के अनुसार ही इस गेम को खेल सकते हैं, वरना आप नहीं खेल।
तो उस कंडीशन को रखना जरूरी है जो कि उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा उस चीज को। कोर्सेस में लेवल्स होने चाहिए, लेवल्स होने चाहिए हर एक लेवल, क्योंकि अगर एक ही लेवल हो, देयर इज वन लेवल, तो स्टूडेंट्स नॉट टेक इंटरेस्ट, वो दे कंप्लीटेड वन लेवल एंड खत्म हो जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, हर लेवल, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कि लेवल आप नेसेसरी, जब भी आप गेम को बनाए तो एक लेवल बनाए कि इस लेवल में ये करना है, देन आप दे गॉट सम रिवॉर्ड्स एंड लॉटिंग, एंड नेक्स्ट लेवल, हर लेवल में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कुछ स्टेज, कुछ रहना चाहिए। तो दैट इज द मैकेनिक्स, ऐसे बनाए। देन मैकेनिक्स पर डायनामिक्स होना चाहिए। गेम्स आर डायनामिक्स। गेम्स डायनामिक्स कैसे होगा, कॉन्टेक्स्ट, कौन सा कॉन्टेक्स्ट आप लेकर के गेम बना रहे हैं, कौन सा पॉइंट, कौन सा आप कह सकते हैं, कौन सा टॉपिक है आपका उसका, और कांस्टेंट, उस गेम में कांस्टेंट होना जरूरी है, दैट इज रूल्स, दैट इज कंडीशन, एंड दैट कंडीशन, चॉइसेस, चांसेस, कंपटीशन होना चाहिए। विदाउट कंपटीशन के गेम नहीं हो सकता, तो दैट कंपटीशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स का कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। Without cooperation, you don't have to create the game in the classroom. Okay, so cooperation is necessary. And next is aesthetics. Aesthetics means games are challenges. Without challenges, students not take interest. So challenges are there. Confidence. If the students completed the level 1, students के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि दैट गो टू द लेवल सेकंड लेवल और द सेकंड लेवल 2। तो वो हर स्टेप में, क्योंकि हर गेम में हर एक स्टेप के लेवल में लेवल 1 लेवल थोड़ा सा कम है, लेवल 2 थोड़ा सा ज्यादा, तो वो लेवल जैसे ही कंप्लीट होता है दैट स्टूडेंट्स को कह सकते हैं कि वो हैप्पी महसूस करता है एंड देन गो टू द अदर लेवल। क्रिएटिविटी, अगर दी स्टूडेंट्स, अब अगर दी आपके कोई भी चैप्टर का अगर दी आप गेम तैयार करें, तो गेम में वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए ताकि बच्चों को क्या कर सकते हैं, इंगेज कर सकता है। क्योंकि अगर वो क्रिएटिविटी नहीं आया तो बच्चे फिर से वही लूज देयर मोटिवेशन एंड दे नॉट टेक इंटरेस्ट इन द गेमिफिकेशन। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन, बच्चों का कंट्रीब्यूशन मींस कि अगर भी कोई भी गेम है तो उसमें कंट्रीब्यूशन मींस आप क्या समझते हो कि रिवॉर्ड, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं कि जैसे गेम ऑफ खिलवाएं क्लास में, उसमें हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बच्चों को, कि अगर भी वो गेम खिलाएं तो बच्चे ने क्या सीखा, तो सबसे पहले कि उसमें आपको क्या दे सकते हैं, रिवॉर्ड क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी, दैट मींस कि मेक अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, मेक अ ग्रुप ऑफ द 5 to 6 स्टूडेंट्स एंड प्ले अ क्विज लाइक, तो वहां पे हम ये कह सकते हैं दैट इज द कम्युनिटी। इससे क्या होगा कि अपने गेम जैसे यहाँ पे भी है, स्कूल में आप देख सकते हो हर एक का हाउसेस होते हैं, so that houses, the students of that houses, that is the red house and the yellow house, that create own effort on the competition like essay competition or quiz competition. So वहां पर एक क्या होता है, उसमें एक चीज और डेवलप होता है, वहां से हम ये कह सकते हैं एक चीज और डेवलप होता है, दैट इज कोलैबोरेशन, दैट इज द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प करना सीख जाते हैं अपने ग्रुप के स्टूडेंट, दैट इज द हेल्पिंग नेचर टू द स्टूडेंट। एक चीज ये भी डेवलप होता है, जैसे ही आप ग्रुप में आप किसी भी क्विज को चलाएं तो वो 5 से 6 स्टूडेंट जो भी ग्रुप बनाए वो दैट क्रिएट ओन एफर्ट एंड ऑल द स्टूडेंट्स क्रिएट देयर ओन एफर्ट, अपना एफर्ट को लगाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, फॉर विनिंग द गेम को जीतने के लिए। तो वहां पे एक हम कह सकते हैं कि कोऑपरेशन का भाव आ जाता है, एक दूसरे में हेल्पिंग नेचर का भाव आ जाता है आपस में, और कंपटीशन का नेचर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे टेक इंटरेस्ट, चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट ऑन दैट। Let's assume Sarah promises to give Matt. So
हर लेवल में जो रिवॉर्ड्स होते हैं कि कैसे हम गेम में रिवॉर्ड्स को हम ऐड कर सकते हैं, वो चीज हम लोग देखते हैं इस वीडियो को समझते हैं। Let's assume Sarah promises to give Matt $100 if he runs a mile in less than 7 minutes. In this case, everything depends on Matt. He can train until he consistently succeeds, and when he's ready, he can show Sarah and get his $100. Game theory doesn't study situations like this one. Instead, it studies situations involving more than one participant, and in which not everything depends on one person. For example, in the game of chess, the other player's moves continuously influence your strategy. That would be one example of a situation studied by game theory. But don't make the mistake of assuming only actual games are studied. Game theory is also used to, for example, analyze situations in which multiple companies are competing against one another. Just like in a game of chess, the actions of one company are influenced by the actions of the other participants. For example, if a competitor lowers the price, the other companies might be forced to do the same. As you can see, game theory basically analyzes the behavior of two or more participants in situations involving rewards or punishments. The rules of the so-called game are known by everyone, and it is assumed that all players are rational. Now, of course, game theory will never be able to predict human behavior with 100% accuracy. In one situation or another, you might very well do the exact opposite of what game theory suggests, but still, it offers some truly fascinating human behavior insight. So before starting the quiz time, मैं एक गेम आपके साथ भी खिलाना चाहता हूँ मैं, ताकि गेमिफिकेशन को कैसे बच्चों में लाया जा सके, ताकि वो हम थोड़ा एक्टिविटी से हम समझ सकें। So please come 3 to 4 volunteers मुझे चाहिए होंगे, आ सकते हैं आप यहाँ पर। Please come. शेयर लगा प्लीज जाओ। हाँ सर ओके सो there are 4 participants in 5 so game is बहुत सिंपल सा गेम है, ताकि हम बच्चे में हम कैसे डाल सकते हैं, जैसे एक बच्चे जैसे 3 to 4 क्लास के बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं। तो गेम क्या है कि अगर किसी आपको इवन नंबर बोला जाए तो बैठ जाना है, और ऑड नंबर बोला जाए तो खड़े हो जाए, और ये इंस्टेंट होना चाहिए। और अगर देखिए इसमें ऑड में कोई बैठ गया तो फिर इवन में बैठना है, ऑड नंबर अगर भी हम बोले तो वो खड़े हो, ठीक है। सो लेट्स प्ले 7 ऑड इवन में बैठे रहना है, ऑड में खड़े होना है, ऑड में खड़े होना है, ऑड देन स्टैंड अप एंड इवन सिट अप। 18 और इसमें ये होगा कि ऐसा भी है कि चलिए अभी तो फर्स्ट टाइम इसमें ये होगा Music World. The Bluetooth device is ready to pair. तो इसमें Welcome ये to होगा Rock Music World. The Bluetooth device is ready to pair. तो इसमें Welcome to Rock Music World. The Bluetooth device is ready to pair. Welcome to Rock Music World. हेलो हाँ जल्दी से खत्म करते हैं। तो इसमें Welcome अगर to नहीं Rock बोला Music World. इतना तो जोर से बोल सकते
इसमें करना ये है, और अगर ये गलत हुआ तो वो आउट हो जाएंगे, तो विथ वो चलता ही रहेगा, फिर फायदा नहीं है। तो इवन में बैठे रहना है और ऑड में खड़े हो जाना है, एंड देन वन प्लेयर एट लास्ट दे गॉट अ स्मॉल टॉफी फॉर दैट। तो Reward should be surprise. so 19 so 19 is the odd number, so आपको खड़े होने था, you remove sir, then you 18 16 20 37 18 38 So Ravi sir is a winner. For a small gift sir. So यहाँ से हमने ये सीखा, बच्चों में ये इंटरेस्ट पैदा कैसे कर सकते हैं, इससे हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। इवन नॉट इवन फॉर व्हाट इज ऑड एंड इवन, यहाँ तक कि बच्चों को आप ये बता सकते हैं कि दैट इज इवन नंबर के मल्टीपल्स कौन सारे होंगे। तो जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे इवन नंबर्स के मल्टीपल होंगे, और जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो सारे ऑड नंबर के मल्टीपल्स होंगे। सो इस तरह से हम बच्चों में गेमिफाई एक डेवलप कर सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटा सा गेम है, इससे मतलब एक चीज हम इसमें इवन और ऑड को कैसे हम डाल सकते हैं, ये गेमिफाई किया। आप अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट में कैसे गेमिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी हो सकता था बहुत सारे बच्चे हो। शेप्स की बात करें तो शेप्स में अगर हम बोल दें कि ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्रायंगल हो, तो हर एक बच्चे को बता दें कि ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये हर एक बच्चे में अपने में एक बना दे कि यू आर अ क्वाड्रिलेटरल, यू आर अ ट्रायंगल, यू आर अ रेक्टेंगल। सो इस तरह से हम उसको गेमिफाई कर सकते हैं किसी भी लर्निंग प्रोसेस। सो लेट्स पूरे गेमिफिकेशन में हमने जो सीखा उससे एक क्विज है। So first question is, game-based learning ties the subject content to gamify to allow the student to apply the content to the what? Real world. So कैसे हम real world से students को relate करके हम क्या कर सकते हैं, उसको learning process में ला सकते हैं। So this is the real world is the correct answer. Second. Game-based learning allows teachers and students to collaborate, debate, play against each other, perform. Collaborate कैसे हम, मैंने बताया कि अगर ये ग्रुप बनाते हैं तो कैसे एक दूसरे में हेल्पिंग नेचर पैदा होता था, तो दैट इज द कोलैबोरेशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गेमिफिकेशन। कैसे बच्चे कोलैबोरेट करें, तो कोलैबोरेट इज द राइट आंसर। चेंजिंग योर क्लासरूम टू गेम बेस्ड लर्निंग क्लासरूम टेक्स क्वेश्चन इज चूज the one that does not complete the sentence। कौन सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करेगा? नॉलेज ऑफ ऑल द डिवाइस। सेकेंड कैसे? सेकेंड टाइम। चेंजिंग योर क्लासरूम टू गेम बेस्ड लर्निंग क्लासरूम टेक्स टाइम। ये करेगा, वो गेमिफाई करने में आपको टाइम लगेगा। कोई भी चैप्टर है उसको गेमिफाई करने में टाइम लगेगा। उसके बाद पेशेंस तो भी है, परसेप्शंस जो भी ये भी आपको लगेगा, दृढ़ता आपको लगेगी। उसमें आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन होना जरूरी है कि कैसे हम अप्लाई कर सके। दिस इज नॉट द इजी। हर चैप्टर में कैसे गेमिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें वो नॉलेज ऑफ ऑल डिवाइसेस, अगर सारे डिवाइसेस के आपको नॉलेज नहीं भी है तो बच्चों में आप कर सकते हैं गेमिफाई, और उसके बाद बच्चों से आप गेमिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, गेमिफिकेशन इज use of game design the use of game design elements in non gaming context। जैसे हम गेम डिजाइन को एलिमेंट्स को हम नॉन गेमिंग कॉन्टेक्स्ट से कैसे ऐड कर सकते हैं, दैट इज द गेमिफिकेशन। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ एडिंग गेमिंग टू योर क्लासेस टू योर क्लासेस? हायर स्टूडेंट्स इंगेजमेंट, है ना। सबसे बड़ी दिक्कत है क्लास में स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट टीचर्स की तरफ लाना। तो गेमिफिकेशन होने से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इंगेज होंगे आपके तरफ, दैट इज हायर स्टूडेंट इंगेजमेंट। वहां पे स्टूडेंट्स आपकी तरफ इंगेज ज्यादा होंगे। नेक्स्ट, गेमिंग प्रोवाइड टीचर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू
have free time in class? No. Differentiate for the different level of the students. Not give choice to the students, lower student investment नहीं. Second is the correct answer, that is differentiate for the different level of the students. Students अलग अलग लेवल के होते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जैसे इसका नेगेटिव हमारा फीडबैक था, उससे जान सकते हैं क्योंकि वो नहीं समझा. तो दैट इज द डिफरेंट लेवल ऑफ द स्टूडेंट. कि कौन स्टूडेंट तेज है, हमें उसके बारे में ना सोच करके कौन सा स्टूडेंट थोड़ा सा स्लो लर्नर है उसके बारे में हम सोचें. थैंक यू टू ऑल.